બસ જે છે ઓકે સૌથી વધારે એનો યુઝ ક્યાં થાય તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ઓકે હવે જે પ્રોફિબસ છે ઇન્ટરનેશનલ નેટવર્કિંગ સ્ટાન્ડર્ડ એક્સેસ કરે છે ઓકે ઇન્ટરનેશનલ નેટવર્કિંગ સ્ટાન્ડર્ડ એક્સેસ કરે છે જે પ્રોસેસ કંટ્રોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને મટીરિયલ હેન્ડલિંગ મશીનમાં યુઝ થાય છે ઓકે પ્રોફિબસ હવે આ પ્રોફિબસનો ઉપયોગ શું કરવામાં આવ્યો તો આ જે પ્રોફિબસ જે છે એ હાઈ સ્પીડ કોમ્યુનિકેશન માટે કામ આવે છે ઓકે હાઈ સ્પીડ કોમ્યુનિકેશન કરે છે ઓકે એટલા માટે પછી તે સિંગલ કેબલ વાયરિંગથી મલ્ટિપલ ઇનપુટ સેન્સર બ્લોક બરાબર પછી પ્યુમેટિક વાલ્વ્સ કમ્પ્લીટ ઇન્ટેલિજન્ટ ડિવાઇસીસ સ્મોલર સબ નેટવર્ક ઓપરેટર ઇન્ટરફેસને સપોર્ટ કરે છે ઓકે કહેવાનો મતલબ એમ કે પ્રોફિબસ જે છે એ સિંગલ કેબલ વાયરિંગ દ્વારા ઘણા બધા ડિવાઇસીસને કોમ્યુનિકેટ કરાવી એના મદદથી કોમ્યુનિકેટ કરાવી શકીએ છીએ ઓકે પછી તે ઓપન સ્ટાન્ડર્ડ છે ઓકે ઓપન સ્ટાન્ડર્ડ છે પછી પ્રોફિબસ BMFT દ્વારા ઇનિશિએટ થયેલ છે ઓકે આ BMFT શું છે તો એ ફેડરલ મિનિસ્ટર ફોર રિસર્ચ એન્ડ ટેકનોલોજી જે છે ઓકે એ પ્રોજેક્ટ દ્વારા આ ઇનિશિએટ થયેલું છે પ્રિયોજિત કરવામાં આવ્યું છે ઓકે પછી શું છે તો તે 9 પિન ડી ટાઈપ કનેક્ટર અથવા તો 12 mm ક્વિક ડિસ્કનેક્ટ કનેક્ટરનો યુઝ કરે છે ઓકે તેના નંબર ઓફ નોડ 127 સુધી લિમિટેડ હોય છે ઓકે આમાં નંબર ઓફ નોડ કેટલા લિમિટેડ હોય તો 127 આ મેઇન પોઈન્ટ ખાસ તમે યાદ રાખજો પછી એનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ 24 કિલોમીટર સુધી સપોર્ટ કરે છે જેની સ્પીડ 9600 BPS થી 12 MBPS હોય છે ઓકે આ જે સ્પીડ જે છે ડિસ્ટન્સ જે પ્રોફાઇલ બસ જે છે એ 24 કિલોમીટર સુધી કોમ્યુનિકેશન કરી શકે છે પછી જો કોમ્યુનિકેશન કરવું હોય ડિસ્ટન્સ વધારવું હોય 24 કિલોમીટર પછી તો એ રિપીટરનો આપણે યુઝ કરવો પડે રિપીટરનો યુઝ શું થાય તો કે આપણે સિગ્નલ રીજનરેટ કરવા માટે સિગ્નલ સ્ટ્રોંગ બનાવવા માટે ઓકે નેક્સ્ટ ઓકે તો તે બે ટાઈપના ડિવાઇસને સપોર્ટ કરે છે ઓકે માસ્ટર અને સ્લેવ ઓકે બે પ્રકારના ડિવાઇસને સપોર્ટ કરે છે માસ્ટર અને સ્લેવ જે માસ્ટર જે છે એને એક્ટિવ સ્ટેશન કહેવામાં આવે અને સ્લેવ છે એને પેસિવ સ્ટેશન કહેવામાં આવે ઓકે જોઈએ આગળ તો માસ્ટર ડિવાઇસીસ બસને કંટ્રોલ કરે છે અને તેમને બસને એક્સેસ કરવાનો રાઇટ્સ છે ઓકે કોને તો માસ્ટર ડિવાઇસીસને ઓકે એ બસને કંટ્રોલ કરે છે અને તેને બસને એક્સેસ કરવાનો રાઇટ છે તેથી રિમોટ રિક્વેસ્ટ વગર મેસેજને ટ્રાન્સમિટ કરે છે ઓકે રિમોટ રિક્વેસ્ટ વગર મેસેજને ટ્રાન્સમિટ કરે છે એટલે તેમને એક્ટિવ સ્ટેશન કહેવામાં આવે છે ઓકે પછી સ્લેવ જોઈએ તો સ્લેવ ડિવાઇસીસ જે છે એ પેરિફેરલ ડિવાઇસીસ કહેવામાં આવે છે જેમાં ટ્રાન્સમીટર સેન્સર અને એક્યુલેટર હોય છે ઓકે તેઓ એકનોલેજ મેસેજ જે માસ્ટર દ્વારા મોકલવામાં આવે છે અને તે રિસીવ કરે છે તેને પેસિવ સ્ટેશન કહેવામાં આવે છે ઓકે આ બે ખાસ નોંધ કરજો ઓકે માસ્ટર અને સ્લેવ ડિવાઇસીસ બરાબર પછી આગળ જોઈએ તો પ્રોફિબસ ડીપી એટલે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ પેરિફેરલ ઓકે તે મલ્ટિપલ માસ્ટર ડિવાઇસીસને એલાવ કરે છે જેમાં એક સ્લેવ ડિવાઇસીસ અને બીજા માસ્ટર ડિવાઇસીસ સાથે કનેક્ટ હોય છે બરાબર તેમાં મલ્ટિપલ માસ્ટર રીડ કરી શકે પરંતુ એક જ માસ્ટર રાઇટ કરી શકે ઓકે પછી હાઈ સ્પીડ ડેટા ટ્રાન્સફર સેન્સર અને ઇક્વિપમેન્ટ લેવલ ઓકે આ એના ફીચર છે જે હાઈ સ્પીડ ડેટા ટ્રાન્સફર પછી સેન્સર ઇક્વિપમેન્ટ લેવલ ઓકે પછી આગળ જોઈએ પ્રોફિબસ FMS ઓકે તો ફિલ્ડ બસ મેસેજ સ્પેસિફિકેશન બરાબર તો તે સ્પેસિફિકેશન શું છે તો તે પેર ટુ પેર મેસેજ ફોર્મેટ છે જેમાં માસ્ટર એકાબીજા સાથે કોમ્યુનિકેટ કરે છે અને 126 નોડ અવાઇલેબલ છે ઓકે પછી કોમ્બો મોડમાં FMS અને DP એકસાથે નેટવર્કમાં વાપરી શકાય છે ઓકે કોમ્બો નોડ એટલે કે FMS અને DP એકસાથે નેટવર્કમાં પ્રોફિબસ PAC એટલે કે પ્રોસેસ ઓટોમેશન જે ડાયગ્નોસ્ટિક એક્સટેન્શનમાં વપરાય છે ઓકે પછી જોઈએ પ્રોફાઇલ બસ
પ્રોટોકોલ સ્ટેક. ઓકે, તો 8મું લેયર યુઝર લેયર છે, જે 7મા પછી હોય છે. ઓકે, એફએમએસ, ડીપી અને પીએ. ઓકે, એફએમએસ, ડીપી અને પીએ જે આપણે જોયું એમ ડેટા લિંક લેયર યુઝ કરે છે. ડીપી, પીએ એમ ફિઝિકલ લેયર યુઝ કરે છે. અને પીએ ઇન્ડસ્ટ્રી સેફ્ટી રિક્વાયરમેન્ટ યુઝ કરે છે. ઓકે, પ્રોફિબસ માટે એક હું તમને વિડીયો શેર કરું. ઓકે, એ તમે વિડીયો જો તો તમને વધારે એમાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવશે. ઓકે, कि कैसे एक सेंट्रल प्रोसेसर या कंट्रोलर फील्ड पेरिफेरल्स यानी आईओएस और जो सब कंट्रोल सिस्टम है प्रोफिबस बेस्ड है वो कैसे कम्युनिकेट करता है। दोस्तों कंट्रोलर दो मोड में ऑपरेट करता है जनरली, लोकल या फिर रिमोट डिस्ट्रीब्यूटेड आईओ मोड में। बेसिकली लोकल कंट्रोलर वहाँ एम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पर कोई लोकल ऑपरेशन या प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर ड्रायर ऑपरेशन, कंप्रेसर कंट्रोल, एनालाइजर सैंपल हैंडलिंग सिस्टम या फिर किसी गियरबॉक्स का लुब्रिकेशन सिस्टम एक्सेट्रा। ये सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ प्रोग्राम को बार बार चेंज करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, या फिर ब्लाइंड कंट्रोल होता है, या फिर स्टैंड अलोन ऑपरेट करते हैं, या किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर बेसिकली कंट्रोलर्स के साथ ही आईओएस को इनकॉर्पोरेट या इंटरफेस किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पावर सप्लाई यूनिट कंट्रोलर के साथ बैकप्लेन बस पर ही आईओ कार्ड को इंस्टॉल किया जाता है और आईओएस बैकप्लेन कनेक्टर पे ही पैरेलल बस होती है, उससे ही कंट्रोलर से कम्युनिकेट करते हैं। यदि आपको इस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल चाहिए तो इस सिस्टम को प्रोफिबस पे ले सकते हैं, या फिर किसी एचएमआई को कनेक्ट करके वहाँ पे लोकल मॉनिटरिंग और कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था लोकल कंट्रोल एप्लीकेशन। अब हमारा प्लान बहुत बड़ा है, कई सेक्शंस और एरियाज में बटा हुआ है। अगर सारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट की केबल्स को कंट्रोल रूम तक या कंट्रोलर तक ले जाएंगे या सीपीयू तक ले जाएंगे तो केबल्स का एक जंगल सा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सेक्शन वाइज या एरिया वाइज आईओ पैनल इंस्टॉल करते हैं ताकि फील्ड इंस्ट्रूमेंट केबल की लेंथ को कम किया जाए और आईओएस को स्टेटस को एक फील्ड बस केबल द्वारा मेन कंट्रोलर या सीपीयू तक पहुंचाया जाए। मोस्टली प्लान में दो तरह की फील्ड बस को यूज किया जाता है, प्रोफिबस या फिर फाउंडेशन फील्ड बस। अब कॉमन फंडा ये है कि दोनों साइड में एक आपका कम्युनिकेशन प्रोसेसर होना चाहिए और बीच में एक सीरियल केबल होती है जो आपस में कम्युनिकेट करती है। आइडिया ये है कि बेसिकली पैरेलल डाटा को सीरियली ट्रांसफर करके कंट्रोलर या सीपीयू तक पहुंचाया जाएगा। चलिए पहले हम देखते हैं प्रोफिबस क्या होता है। ये दो कोर की एक ट्विस्टेड स्क्रीन केबल होती है जिसमें प्रोफिबस मास्टर यानी पीएलसी, प्रोसेसर या कंट्रोलर स्लेव डिवाइसेस मतलब आईओएस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जब तक मास्टर यानी सीपीयू न पूछे तब तक स्लेव डिवाइस कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, कोई आंसर नहीं देता। मास्टर स्टार्टिंग एड्रेस से लास्ट एड्रेस तक हर स्लेव डिवाइस को एक टोकन पास करता है और स्लेव डिवाइस देता है रिस्पॉन्स जैसे ही उसको पूछा जाता है। दूसरी केबल से डिफरेंशिएट करने के लिए ये केबल वायलेट कलर की होती है जिसकी इम्पीडेंस अप्रोक्सीमेट 150 ओम के आसपास होती है जो RS485 ट्रांसमिशन लेयर को फॉलो करती है। इसकी स्पीड बॉड रेट में 9.6 किलोबिट से 12 मेगाबिट तक भी जा सकते हैं। याद रखिए 9.6 से 12 मेगाबिट्स, किलोबिट से लेके 12 मेगाबिट्स तक जा सकते हैं। ये काफ़ी वाइड रेंज है। डेटा स्पीड या बॉड रेट को इस बीच कहीं भी रखा जा सकता है। अगर आपका स्लो प्रोसेस है तो स्लो स्पीड प्रेफर करना चाहिए, फास्ट प्रोसेस है तो फास्ट स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी केबल लेंथ 100 मीटर से 1200 मीटर तक लेंथ के हिसाब से वेरी करती है। ये लेंथ इसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। आप ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करके इसकी डिस्टेंस को 15 किलोमीटर तक भी ले जा सकते हैं। प्रोफिबस डीपी में जनरली 12 डिवाइस को एक ब्रांच में कनेक्ट किया जाता है जिसमें 0 एड्रेस होता है आपका मास्टर का होता है मतलब पीएलसी या कंट्रोलर का। बाकी 31 स्लेव डिवाइसेस आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नंबर्स बढ़ाने हैं तो रिपीटर यूज कर सकते हैं। डीपी बस को आईओएस के अलावा सब कंट्रोल सिस्टम जैसे स्मार्ट एमसीसी, वीएफडी, यूपीएस, एसपीआरएस या किसी भी डिफरेंट मैन्युफैक्चर के इक्विपमेंट को भी यूज किया जा सकता है। कंट्रोल सिस्टम से डिफरेंट मेक के डिवाइस को यूज करने के लिए मैन्युफैक्चर एक जीएसडी फाइल सप्लाई करता है। ये फाइल ASCII कोड में होती है ताकि किसी भी कंट्रोलर सिस्टम के किसी भी मेक के कंट्रोल सिस्टम के साथ उसको डाटा फॉर्मेट में समझा जा सके। और जब डाटा और पावर को एक ही केबल पे आप फेड किया जाता है तो इसको प्रोफिबस पीए कहा जाता है। पीए स्टैंड फॉर प्रोसेस ऑटोमेशन। ये मेजरिंग एलिमेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। जैसे ट्रांसमीटर हो गए, इसमें पावर या करंट को एक लेवल तक कम रखा जाता है ताकि फॉल्ट की कंडीशन में भी इसको एक्सप्लोशन या हजार्डस एरिया में यूज किया जा सके।
इसमें डिस्टेंस 900 मीटर यानी 2 किलोमीटर तक रखी जा सकती है। पर यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ पे स्पीड फिक्स रहती है, 31.25 किलोबिट्स होती है, जहाँ डीपी में स्पीड चेंज की जा सकती है। इसमें 31 डिवाइस तक को 31 डिवाइसेस तक को यूज किया जाता है। अगेन जो है 0 एड्रेस आपके कंट्रोलर का होगा, और इसको डीपी पीए बस, जो प्रोफिबस पीए बस को है डीपी बस से कनेक्ट करने के लिए आप एक कपलर यूज होता है। इस कपलर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि कंट्रोलर का जो टेलीग्राम है वो पीए में कन्वर्ट हो जाता है, पीए का जो रिस्पॉन्स है वो आपका डीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोफिबस पीए में ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल 485 जो है उसे यूज़ नहीं किया जाता जैसे डीपी में उसे करते हैं। इसमें एक मैनचेस्टर बस पावर्ड प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, जैसे कि फाउंडेशन बस में होता है। इसमें पावर और डेटा एक ही साथ एक ही केबल पे फ्लो करते हैं। प्रोफिबस पीए को कन्वेंशनल 4220 और हार्ड कम्युनिकेशन को रिप्लेस करने के लिए और केबलिंग कॉस्ट को कम करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। प्रोफिबस ट्रबल शूटिंग। जनरली प्रोफिबस नेटवर्क सेटअप करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इस नेटवर्क में इनबिल्ट डायग्नोस्टिक मैकेनिज्म होता है जो प्रोफिबस कम्युनिकेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। प्रोफिबस नेटवर्क में कोई फॉल्ट होने पर या इवेंट ट्रिगर होता है तो उसको स्काडा पर रिकॉर्डेबल अलार्म में जनरेट होता है और जिसको डिस्प्ले किया जाता है। फर्दर फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए एक इंजीनियर को एक प्रोफिबस एनालाइजर की जरूरत पड़ती है जो सिग्नल क्वालिटी मतलब स्लेव मोड पर जो डीबी लॉस होता है उसको देखता है। हेल्दी कंडीशन में आप हर नोड की डीबी वैल्यू या एनालाइजर रिपोर्ट को पीडीएफ फॉर्म में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने में पर आप इसको एक्चुअल से कंपेयर भी कर सकते हैं कि कहाँ डीबी लॉस हो रहा है, और अगर रिक्वायर्ड है तो प्रोफिबस केबल को रिप्लेस कर सकते हैं। प्रोफिबस में शॉर्ट सर्किट होने पर मास्टर से डेटा कम्युनिकेशन बंद हो जाता है या ओपन सर्किट होने पर डेटा बंद हो जाता है, डेटा कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। शॉर्ट सर्किट और ट्रिपल पॉइंट की डिस्टेंस को एनालाइजर से पता लगाया जा सकता है कि अप्रोक्सीमेटली आपका फॉल्ट किस डिस्टेंस पे है। पावर केबल्स को प्रोफिबस केबल से कम 100 mm दूर रखा जाता है ताकि इंटरफेरेंस ना हो, और प्रोफिबस केबल और उसके कंड्यूट को प्रॉपर्ली शील्ड करना चाहिए जिससे इंटरफेरेंस ना हो। दोस्तों, एक प्रोफिनेट नेटवर्क होता है जो प्रोफिबस डीपीपीए से एकदम अलग होता है। प्रोफिनेट और प्रोफिबस के बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोफिनेट एक इंडस्ट्रियल इथरनेट प्रोटोकॉल है, जैसे पीसी का होता है अपन नेट से कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी एक इथरनेट प्रोटोकॉल ही है, बट इंडस्ट्रियल है तो इसको प्रोफिनेट बोलते हैं। शॉर्ट में बोले तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब गीगाबिट्स तक जा सकते हैं, और ये लार्जेस्ट मैसेज के लिए ही जनरली यूज होता है। दोस्तों, अगर आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट डिजाइन करने जा रहे हैं तो प्रोफिनेट पे जाना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इथरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करता है। इसके कई फायदे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ और स्पेस, जो एड्रेस स्पेस है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। साथ ही आज के जो टूल्स हैं वाईफाई और ब्लूटूथ भी। નેક્સ્ટ ટોપિક છે ગુડ વાયરિંગ એન્ડ ઇન્સ્ટોલેશન પ્રેક્ટિસ વિથ ફિલ્ડ બસ. ઓકે, આ જે ટોપિક છે એ તમારે ખાલી રીડિંગ કરવા જેવા જ છે, બરાબર. એમાં આપણે ટાઈમ નહીં બગાડીએ, બરાબર. જે ટર્મિનેશન પ્રિપેરેશન છે તો ટર્મિનેશન એટલે કે એન્ડિંગ પોઈન્ટ ઉપર આપણે એન્ડિંગ પાર્ટ ઉપર જે આપણે પ્રિપેરેશન કરીએ છીએ, જે ક્લિમ્પિંગ લગાવીએ છીએ, બરાબર, જે કાંઈ કેસ્યુલ આપણે લગાવીએ છીએ, બરાબર, એ બધું છે, બરાબર. એકવાર રીડ કરવા જેવું છે. પછી ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ ધી કમ્પ્લીટ સિસ્ટમ, બરાબર, એમાં ઇન્સ્ટોલેશન આપણે કરીએ જે કાંઈ તે. ઓકે, પછી ફિલ્ડ બસ ટેસ્ટરનો ઉપયોગ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ પાવર પ્રોબ્લેમ. ઓકે, પાવર પ્રોબ્લેમ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન પ્રોબ્લેમમાં બે પ્રકારના આવા પ્રોબ્લેમ હોય છે. ઓકે, પાવરને શોધવા માટેના સરળ રસ્તાઓ છે, પછી એના એક્ઝામ્પલ છે, કોમ્યુનિકેશન પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, આ બધું એકવાર તમે રીડ કરી લેજો. ઓકે, પછી ટેસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ છે. ઓકે, આ જે ટોપિક છે એ બધા તમે રીડ કરી લેજો. ના સમજાય તો મને પૂછજો, બરાબર.